Good morning and namaskar adab to all of you, and I would like to welcome all of you on behalf of Roots to Roots. You are most welcome, all of you, for a wonderful session of Indian classical music, which is very traditional music in our country, and we are grateful to all of you for this session. I hope everyone is fine and keeping in good health also. So, today's our topic is Tabla accompaniment. Tabla solo is a different style, but today's our topic is Tabla accompaniment with different form of music like vocal music, classic, Kathak dance, instrumental, and also other forms of music also like film music. So there are different styles of accompaniment where we provide at different level, different time, and different form of music. So it's a very interesting and very challenging topic also, because when you do an accompaniment to different musicians, then you hold yourself, you hold your feelings, you hold your playing, and you play according to the melody, you play according to the instrument, you play according to the dance form. You have to wait, you have to listen, you have to be very patient. Even if you want to play, if you want to play something, if you want to fill the blank while there is a gap between instrumental or between dance performance, you have to be very patient when you are doing accompaniment, and also you have to be very knowledgeable person when you are accompanying instrument. So I hope you are very well aware of Indian classical music, since you are connected with Roots to Roots. So I'm sure you know, all of you know about this instrument, all of you know about different form of music, जिसमें instrument है, vocal है, and also dance also. So we are sharing. I'm sharing my experiences and my opinion, my suggestions also to you for perfect accompaniment, for a good accompaniment, and a tabla player who is accompanying instruments or vocal, what points he should keep in his mind while he is performing on the stage. कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए. Few of them I will share with you, and there are really good points. While we are accompanying, first of all, the person who's performing on the stage and you are the accompanist on that day, on that evening, whatever, or morning also can be possible. You should know him personally. You should know his temperament. You should know what he feels about rag, what he feels about tal. So these kind of informations one good tabla player should know. And then the treatment of the raga, किस तरह से वो राग को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से वो बजा रहे हैं on the stage, off the stage, what kind of rag he likes, what kind of improvisation he is looking for or he is performing on the stage. So these are the points where one tabla player should know, and he must be very intelligent, and he should follow these points also, and he should inhale the raga also. So these are the few points which a good tabla player can find out from the different musicians, because the mood and the temperament of all artists are different. It's not the same. There are musicians who
feel the raga, who feels the tala with a different mood. So if a tabla players know the temperament, for example, one musicians like Ustad Amjad Ali Khan Sahab, how he feels the raga. Pandit Shiv Kumar Sharma, how he feels the raga, which raga he is working on. And if a tabla player knows the rag also, that is excellent. One should know also, not too much, but a little bit. He can feel the rag. He can differentiate the ragas also. Like Tilak Kamo diye hai, Charo Keshi ye hai. So these are Malkons hai, to Darbari hai, to Puriya hai, to Marwa hai. He should know Subha ka rag kaun sa, which are the morning ragas, which are the evening ragas. So if not the detail, what are the difference between morning ragas and evening ragas? If not too much of details, but there are basic things which one tabla player should know. My suggestion is, because I like to listen the ragas also when when a instrumentalist is performing or vocalist is singing. I like to listen his alap, jor, jhala, which is first part of the concert, without the tabla, without the accompaniment. A tabla player have to wait for when the gut starts, when the composition starts and his turns comes. Till that he have to wait. So during this period of time, like half an hour or 20 minutes or 25 minutes, whatever amount of time he's playing alap, jor, jhala. So a tabla player is just sitting on the stage doing nothing and waiting for his turn. So this time of period, if a tabla player can appreciate or can listen to the rag, or if he can inhale that notes, if he can inhale that raga in his during his accompaniment, during his performance, that is absolutely fine. This is my opinion, because I always enjoy, I always feel to listen, to inhale the notes of the raga. Malkons hai, Darbari hai. These are there are hundreds, kinds of thousands of ragas which are designed to play with the different timings. So देखा ये गया है कि जब आलाप जोड़ हो रहा है तो तबला प्लेयर कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, देखा ये गया है. बट दिस इज नॉट फेयर. This is not fair for the music. This is not fair for an artist. Suppose if I'm playing with great musicians like Ustad Amjad Ali Khan Sahab or Ustad Rashid Khan Sahab, and there are other musicians. So if I'm playing with them, and if I'm not paying attention to their music which is going on, so that is not fair also, and that is not good feeling for me and for the audience also. But you should know the raga. If you know the rag, then you can enjoy more and more. And after the listening to the alap, jor, jhala, when you start your tabla, I think so when you blend tal and notes or tal and raga, you can give better and better of your accompaniment. That's what I feel. If a tabla player doesn't know about the raga, there are tabla players who maybe know better than me, who maybe don't know about the raga. So maybe they are missing something. They are missing the very important part of the raga, the very important part of alap, jor, jhala. So what I suggest to all of you, those who are listening to me through Roots to Roots session, I will suggest the tabla players to go for few classes for vocal also, listen to the vocal music also, feel the beauty, feel the essence of the raga, feel the design, how it designed for the time theory. I'm sure you will feel double pleasure
what you are feeling from through your music, through your instrument. So, I mean, I love listening to different maestros, their ragas. There are different maestros who are popular, who are meant to sing and play for some particular ragas. तो इस तरह से मेरा मतलब एम रहता है कि मैं राग भी सुनूं and I can inhale that ragas, and when I start playing, when I start doing my accompaniment, so I merge, I blend, I feel the both tal and rag. That's what I feel. So these are the one of the major point which I feel. Then while I am accompanying, I have to be very careful about the movements, about the rhythmic patterns, what the instrumentalist is doing or vocalist is doing. So I have to follow step by step what path he is using, what different lekari he is doing on his instrument. That is also you have to be very careful. You have to be very alert on the stage, because while we are accompanying, we have to keep the tal also, we have to keep the theka, we have to keep the time cycle also. During our time cycle, we have to listening to the different melody, the different lekari, the different ताल पक्ष ऑल्सो. सो मैं बात कर रहा था एकम्पनीमेंट के बारे में, और हमारे जो गुरुजन रहे हैं जिन्होंने हमें तबला सिखाया है, और बहुत सारे गुरुजन ऐसे रहे हैं जिनसे हमने सीखा नहीं है, तबला नहीं सीखा है, बट वी लर्न देयर एक्सपीरियंस, देयर लाइफ, जो भी उनके तजुर्बे रहे हैं वो उनके अपनी ज़िंदगी के तबले के लिए, और पर्सनल ऑल्सो उनसे जो हमने बातें की हैं. सो यू सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड मीट गुरुज इवन इफ़ यू आर नॉट लर्निंग इंस्ट्रूमेंट. अगर आप कोई साज नहीं सीख रहे हैं, बट स्टिल इफ़ यू कैन मीट गुरुज, इफ़ यू कैन गो एंड पे योर रिस्पेक्ट टू देम and discuss about the music, so I'm sure you will learn lots of you. There is lots to learn. I'm sure you will learn different things. You will learn so many things about their personal life, about their experience of life, about the experience of their instrument. मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे गुरुओं के पास जाके थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको उनसे बहुत कुछ मिलेगा. ये चीज़ें हमने अपने गुरु से सीखी जब हमने उनसे पूछा अच्छा एकम्पनीमेंट कैसे हो सकता है, कैन यू प्लीज़ गाइड अस. एंड स्टिल आई गो एंड टॉक विद माई इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग माई इंस्ट्रूमेंट विद अदर गुरुज. स्टिल आई गो इफ आई गेट टाइम, with due to very respect to all of them, and sometime I get 10 minutes, half an hour, whatever amount of time I get, I go and visit to other gurus also to get their knowledge. And I'm glad, I'm honored that they share their knowledge with me also. हमने बहुत सारे गुरुओं से बात करी, पूछा अच्छा अकम्पनीमेंट कैसे हो सकता है, तो उनको वो एक ही जवाब देते थे, बेटा ऐसे चलना है उनके साथ में जैसे साया, ऐसे चलना उनके साथ में जैसे अच्छा दोस्त होता है, ऐसे चलना है जिनके साथ आप एकम्पनीमेंट कर रहे हैं जैसे आप उनको कहीं रास्ते में से ले जा रहे हैं और बहुत सेफली आप उनको ड्राइव करके और डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं. बेटा ऐसे चलना जिनके साथ में आप एकम्पनीमेंट कर रहे हैं कि उनको कहीं भी आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो. एकम्पनीमेंट का मतलब है साथी. तो जब साथी आपके साथ चलता हुआ होता है तो वो ऐसे चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी आपको मदद की ज़रूरत है, सो योर एकम्पनीस इज़ देयर. तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस कलाकारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको चलना है. सम ऑफ देम ऑल्सो दे एडेड कि अच्छा तबला प्लेयर वही होता है
जो राग के बारे में भी जानता है, जिसको रागों की समझ है। तो मेरा मतलब आप सब लोगों से कहना यह है कि जब भी आप तबला सीखें तो थोड़ा थोड़ा राग की जानकारी भी लें। ऑफ कोर्स यू गो एंड लर्न, किसी भी गुरु, अच्छे गुरु के पास में आप जाएं और बेसिक चीज़ें सीखें उनसे, तो वो आपको एकम्पनीमेंट में आपको हेल्प करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट के भी लिए मैं कह रहा हूँ। एंड वेन एवर यू गेट अ चांस टू एकम्पनीमेंट समवन, प्ले योर टाइम साइकिल, प्ले योर ठेका, जो इस तरह से बजाएं, इस तरह से उसको इम्प्रोवाइज करें, डेकोरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लेइंग, और एक चीज़ है, देर आर different musicians who wants to play simple theka, that you have to prepare yourself from your home. This is homework also. आपको जिनके बारे में आप बजाने जा रहे हैं उनके बारे में आपको एक जानकारी चाहिए है कि उनको सिंपल ठेका पसंद है और he likes to decorate, he likes to improvise time cycle. There are vocalists who wants to play simple theka, just simple theka they want. They are happy with the simple theka. It is not that they don't want to let the tabla player improvise. ऐसा नहीं है. But their style, उनका जो स्टाइल है वो उसका रिक्वायरमेंट ही सिंपल ठेका है। कुछ वोकलिस्ट का जो मूड है, जो उनका अंदर से उनका जो म्यूज़िक है वो निकलता है कि सिंपल ठेका नहीं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी हो, वो बीच बीच में डेकोरेट भी करते रहें, कहीं ना कहीं कोई फ्रेज़, कोई बोल उसको डेकोरेट करके सम पे आए, और बिल्कुल सादा ठेका नहीं चाहिए उनको। यू सी, दिस इज़ होमवर्क। उनको सादा ठेका नहीं चाहिए, उनको बीच बीच में कहीं ना कहीं अच्छे फुलझड़ी कुछ ना कुछ छोड़ते रहे तबला प्लेयर, सो ही एंजॉय ऑल्सो। और ऐसा भी नहीं हो कि ओवर हो जाए। आप जब एकम्पनीमेंट करें तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कलाकार है उसका क्या मूड है, उसका म्यूज़िक क्या है, पहले ही उसको होमवर्क कर लेना अच्छी बात है। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर गुरुज। क्योंकि स्टेज पे जाके अनकंफर्टेबल रहें, स्टेज पे जाके ये सब रिसर्च वर्क नहीं होना चाहिए। ये रिसर्च वर्क फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एट होम यू हैव टू डू, और वन हैव टू डू, कि घर पे उनका पूरा मिजाज, पूरा गाने का तरीक़ा, पूरा बजाने का तरीक़ा आप सुने। बहुत पहले when I was child, so there was very limited facilities to listen to records. This was very limited. अभी तो इस 2023 में we have lot of things where we can listen to the music, where we can go and listen to any artist, any kind of music, anywhere in the world, anywhere, कहीं भी आप, फ्लाइट में, ट्रेन में, स्ट्रीट पे, you can listen to anyone. तो आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल गए हैं जो हमारे टाइम में नहीं थे व्हेन वी वर इन स्कूल्स। लेकिन अभी आप लोग बहुत ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिल गई है, थैंक्स टू द बिग कंपनीज जिन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि हमारे पास में ईयरफोन भी है, हेडफोन भी है, मोबाइल भी है, और उसमें सारे फैसिलिटीज़ भी हैं आपको। सो आप कहीं भी सुन सकते हैं और होमवर्क कर सकते हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग हैं जिनको सिंपल ठेका चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस सिंपल ठेके में दे आर इम्प्रोवाइजिंग, वो एलेबरेट कर रहे हैं अपने म्यूजिक को, वेदर दे आर सिंगर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वट एवर। सो दे आर comfortable with the simple theka, with simple time cycle, where
देर आर फ्यू आर्टिस्ट जहाँ वो लोग सिंपल ठेका नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीच बीच में कुछ सिंपल ठेके में ये भी ठेका ही है, ये भी टाइम साइकिल है, एंड द टाइम साइकिल 16 बीट्स इज गोइंग ऑन एंड ऑन, बट मैं उसमें इम्प्रोवाइज भी कर रहा हूँ, डेकोरेट भी कर रहा हूँ, टाइम साइकिल को खूबसूरत भी बना रहा हूँ, उसकी जो सुंदरता है उसको भी मेंटेन कर रहा हूँ, प्लस जो 4/4 का डिवीजन है वो भी चल रहा है, टाइम साइकिल भी चल रही है, ठेका भी चल रहा है। तो कुछ कलाकार ऐसा भी पसंद करते हैं, कुछ कलाकार सिंपल ठेका पसंद करते हैं, कुछ कलाकार थ्रू आउट सिंपल ठेका पसंद करते हैं, कुछ कलाकार आपको टाइम भी देते हैं कि आप इसमें बीच में कुछ एक लंबा पीस बजाइए अपना जो तबले का है। सो थैंक्स टू दीज आर्टिस्ट ऑल्सो who allow us to play a long piece in between when they are having, I will not say rest रेस्ट देना मतलब अच्छा नहीं लगेगा ये बोलना, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा बीच में ब्रेक हो, हमारे गाने में हमारे बजाने में पॉज आए, ब्रेक हो, तो उस ब्रेक में ईदर दे वांट्स टू प्ले तबला प्लेयर और दे वांट्स टू प्ले हारमोनियम और सारंगी प्लेयर, वो सारंगी प्लेयर को या हारमोनियम प्लेयर को चाहते हैं उस बीच में उस पॉज में, बट देर आर बट सम टाइम दे गिव टाइम टू तबला प्लेयर, देन सेकेंड टाइम they give time to harmonium player, and the third time sarangi player. So this cycle also goes on and on. बीच बीच में कभी तबला प्लेयर ने इम्प्रोवाइज कर दिया, कभी हारमोनियम प्लेयर ने, वो भी एक सेशन होता है वोकल के साथ में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ में बिकॉज सिंस देयर इज नो हारमोनियम एंड सारंगी प्लेयर विद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सो ओनली तबला प्लेयर इज देयर टू अकम्पनी देम, तो वो टाइम पे उनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इशारा करते रहते हैं ऐसे करके। सो दीज आर द साइन, जब वो कभी ऐसे करते हैं बजाते बजाते, सो दीज आर द साइन व्हेन तबला प्लेयर starts his own improvisation, starts his own long piece. Now, a very important point here is जब तबला प्लेयर अपना बजा रहे हैं, when he get the sign from his artist कि अभी अब मुझे बजाना है, so this is the one of the major point जो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब हमें बजाने के लिए बोले तो अच्छा तबला प्लेयर वही है जो एग्जैक्टली जो वो बजा के छोड़ा है उन्होंने, जो भी ताल है या जो भी रिदमिक पैटर्न्स हैं या जो भी तिहाई है, तो एग्जैक्टली वो तो नहीं बजा सकते हैं, एग्जैक्टली तबला प्लेयर वो नहीं बजा सकता, बिकॉज वी आर शेयरिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द स्टेज, वो एग्जैक्टली वो नहीं बजेगा, लेकिन कोशिश करें कि उसी के बराबर बराबर कोई चीज़, उसी के टेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ वो पीस बजाए जो उनके म्यूज़िक को सूट कर रहा हो, जो उनके पैटर्न को सूट कर रहा हो, वो बजाने की कोशिश करें आप। फॉर एग्जाम्पल, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा। सो दिस रिदम पैटर्न इज गोइंग ऑन, एंड द सितार माइस्ट्रो, if he plays takate 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 din 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 takate na dha 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 gin takate takate din din, if a sitar player is working on this pattern of लयकारी, तो और उसके इमीडिएटली बाद अगर उन्होंने ऐसे साइन किया बजाने के लिए, तो एक अच्छे तबला प्लेयर का ये काम है कि सेम पैटर्न पे अपना इम्प्रोवाइजेशन करे। सुरों में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा, ऑफ कोर्स बोलो में ही होगा, whatever he can play, whatever he can fill that amount of time जो हमें मिला है उनसे, उसमें अगर हम यही पैटर्न बजा के और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बजा के और
ख़त्म करें ऐसी जगह, एकदम परफेक्ट लैंड करें, परफेक्ट जगह पे उसको छोड़ें, तो वो एक सूटेबल पीस होगा उनके म्यूज़िक के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से। मूड पे भी मत जाइए, अगर आप म्यूज़िकली जाएंगे तो म्यूज़िक के हिसाब से वो अच्छा लगेगा। उसके बाद में अगर उन्होंने कोई और ऐसी चीज़ बजाई वेयर यू कैन प्ले द सेम थिंग और सेम पैटर्न, और उसके ही बराबर का कोई सूटेबल चीज़ हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू अ मॉल एंड यू बाय अ ट्राउज़र, तो आप उसके मैचिंग की कोई शर्ट देखते हैं, तो जब आप वहाँ लेने जाते हैं तो आप कैसे कलर कॉम्बिनेशन मैच करते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, बट एट सम पॉइंट यू चूज द कलर कॉम्बिनेशन जो आपके पैंट, शर्ट, कोट, टाई, इसका कलर कॉम्बिनेशन, टी शर्ट, इसके कलर कॉम्बिनेशन में कैसे आप उसको मिलाते हैं, तो एग्जैक्टली वो तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी यू ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल, एज क्लोजर एज पॉसिबल. So this is a duty of a good tabla player, that if you play a piece during your turn, so try to play as close as possible where the instrumentalist is playing, जहाँ उन्होंने, या और वोकलिस्ट. तो ये एक पॉइंट है एक अच्छे तबला प्लेयर का, और एग्जैक्टली इतनी अच्छी जगह लैंड करे, इतनी अच्छी जगह फिनिश करे कि जो उनके म्यूजिक से मैच हो. बजाएं, ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को कि सितार वाज ए डिफरेंट शोर एंड तबला वाज ऑन डिफरेंट शोर, या सितार तो जा रहा था ईस्ट में और तबला जा रहा था वेस्ट में, और देयर वाज नो कॉम्बिनेशन, या उनमें कोई अपना तालमेल नहीं था, ऐसा नहीं लगे लोगों को. तबला और इंस्ट्रूमेंट में एक अपना कन्वर्सेशन हो रहा था, एक डायलॉग हो रहे थे, हेल्दी डायलॉग हो रहे थे, प्यारे डायलॉग हो रहे थे, एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे थे. दीज आर द मेन पॉइंट्स जो एक अच्छे तबले प्लेयर को, अच्छे तबला वादक को ध्यान में रखना चाहिए. यू सी, जब आप मेरे से कुछ बात करते हैं और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, आई एग्री, तो तभी उसमें बात आगे बढ़ती है. इफ यू से समथिंग एंड इफ आई डिसएग्री फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू से समथिंग, देन आई डोंट एक्नॉलेज यू इवन इफ आई एम नॉट डिसएग्री. तो 2 बार ऐसा हो जाएगा. तो तीसरी बार जो है मीटिंग भी बंद हो जाएगी, कन्वर्सेशन भी बंद हो जाएगा. ये हमारी पर्सनल ज़िंदगी में, आम जिंदगी में ये तरीका है. आपका कोई दोस्त है, मम्मी है या पापा है, या आपके कोई भी कॉलेज फ्रेंड है, अगर आप उसके साथ में जा रहे हैं, एंड इफ़ यू एक्नॉलेज ईच अदर, इफ़ यू रिस्पेक्ट ईच अदर, इफ़ यू केयर फॉर फीलिंग ऑफ योर फ्रेंड, या आपका जो कोई भी साथी है, इफ़ यू केयर फॉर हिज फीलिंग, इफ़ यू केयर फॉर हिज टेस्ट, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, सो आई एम श्योर यू कैन हैव ए गुड फ्रेंडशिप टिल एंटायर ऑफ योर लाइफ. जिंदगी भर आप उसकी दोस्ती के काबिल भी हैं और वो दोस्ती भी चलेगी. इसी तरह से एक तबला प्लेयर का काम है कि वो अपने आर्टिस्ट के साथ में, अपने जो कलाकार हैं जिनके साथ में वो स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनकी अगर फीलिंग को ध्यान रखेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिस्पेक्ट ऑल्सो. और हमें ऐसे नहीं बजाना है कि जो म्यूजिक को ओवरलैप करे, ओवर शेडो करे. उसको बिल्कुल ऐसे बजाना चाहिए कि जो उसका साथ भी हो और दोनों की दोस्ती भी अच्छी रहे, तबले की और सितार की, तबले की, सरोद की, संतूर की, वोकल की, व्हाटएवर. एंड I personally, I love this instrument. When I started, जब मैंने शुरू किए तबला बजाना, तो there were other instruments also, but I choose तबला only. और इसका जो
एडवांटेज है जो इसमें मुझे मिलता है, जो प्लेजर इसमें मुझे मिलता है, वो आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू। और इसका मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बजाना, इसका मेलोडी, इसका ताल पक्ष, सभी कुछ अच्छा लगता है। और हमारी ज़िंदगी में अगर म्यूज़िक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ some kind of vacant. The life is vacant without music. The life is incomplete without the music. जब मैंने शुरू किया ये बजाना, so I was in 8th or 7th standard, like some of you are in 8th or 7th standard. तो तब मैंने चूज़ किया, so तबला was my most favorite instrument amongst the other percussion instruments. तो मुझे इससे बजा के और इसके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है। और इसने मतलब म्यूज़िक चेंज द टोटल पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। अगर आप इसको सीखेंगे, म्यूज़िक को सीखेंगे, म्यूज़िक में एनी फॉर्म ऑफ वोकल और इंस्ट्रूमेंट, दिस चेंज योर एंटायर पर्सनालिटी, दिस चेंज योर एंटायर वे ऑफ लाइफ, दिस चेंज एंटायर योर टेस्ट ऑफ लाइफ। You feel good things more. You ignore bad things. Even you don't pay attention to the bad things. Once you are involved with your music, once you are involved with instrument or vocal, it's completely changed this entire of your life. पूरा आपका personality improve हो जाता है, because it comes in one of the fine arts. तो जितने भी 5 तरह के फाइन आर्ट्स हैं उनमें म्यूज़िक एक है। तो इसके सीखने के, इसके करने के, इसके सुनने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं अगर आप इसको सुने और करें। इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट एज ए प्रोफेशन, बट इफ़ यू डोंट वांट मेक इट एज ए प्रोफेशन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट or an engineer or a doctor or a leader or film actor, as a lawyer, whatever. लेकिन if you want to go in different profession, but side by side, if you are singing or playing, वो आपको एक अलग तरह का प्लेजर दे के जाएगा, आपको एक अच्छा लगेगा, उसके बहुत सारे आपको एडवांटेज हैं जो आप महसूस करेंगे, यू कैन फील। हम लोग आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ विशेस, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।